listen carefully. So here is the screen. So my screen is visible to all of you or not? Yes, sir. Yes, sir. So what is visible right now? Is it visible? So visible. Yes, sir, visible. So maybe I am switching towards the class. So this is classroom that I opened. Now I am opening your class, and today we have created a new that is new book. This is new material, and it is regarding about redox reaction. Okay, so today's very basic step. You need not to uh, do any effort, but you need only that you focus on that. Okay, so basically this is the total content today we have, and we have what is in syllabus that we discuss. Okay, and what is most important that we discuss, and what is redox reaction. By the way, there is a definition. What is reduction, oxidation, and how you differentiate between reductant and reducing agent, as well as oxidant and oxidizing agent. Clear? So make sure that the notes are proper here, and you have seen यहाँ पे कुछ दिख रहा आपको visible, ये जो यहाँ पे mark लगा है, okay, जिसे question mark है. This is not question mark, this is just a, we can say, एक line है, demarcation है यहाँ पे, मतलब जैसे आप दिखाते हो arrow में वो है. तो जहाँ पे भी question mark लगा है, that is arrow that is showing the reaction goes in a forward reaction. Reaction तो भाई इसमें पढ़ना क्या, पहले ये बता देता हूँ. सबसे पहले हमने पढ़ना idea about oxidation and reduction, and there are two concepts, classical concept and electron transfer concept, okay, जो आज discuss किए हैं. Number second is that classification based upon redox reaction, which is direct and indirect, okay, that we discuss. The reduction in the aqueous solution, and we have to discuss the fallacy, that is fractional, we can say, paradoxes in the oxidation number, which is very important. Then how to balance oxidation number, the reduction reaction by oxidation number method and electron ion method. And then we have rest is redox titration, stoichiometry. And in case of indirect reaction, we have to give analysis of the electrochemical cell, standard electrode potential, EMF, and electromotive series. Rest is the first slide that I'm discussing here, that we have reduction, okay, and oxidation method. So if someone asks you what is redox reaction, what is the definition, so here are some examples. तो भाई ऐसा है कि मैं स्क्रीन को थोड़ा शेयर करता हूँ उसके साथ क्या कहते हैं, पेज के साथ. तो वहां पे देखते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं. तो डेफिनेशन तो आपके पास पढ़े हैं. So you just look at the slides, okay, just look at the slides, and at the last line there is a one oxidosed. It's not oxidosed, it's basically oxidized. Spelling mistake is there. So there's no word like oxidosed, it's basically oxidized. So we first of all we discuss the whole. So here I am presenting right now. I'm just stopping the sharing.
Since you are not able to listen my voice, So now it's audible. तो पहले नहीं चल रही थी क्या? मैं ऐसे बोल रहा था? Now it's audible. अरे यार, आप बोलते भी टेक्स्ट नहीं करते हो। Yes. जस्ट टेक्स्ट तो करो कभी कभी। स्पीकिंग एंड यू आर नॉट लिसनिंग, तो आप मुझे बोलते ही नहीं कि आवाज नहीं आ रही है। जस्ट वेट।
Now listen. So copper will react with chlorine. This is the second case. I am adding electronegative atom. Okay. So what it formed? It formed copper chloride. This again oxidation. Clear. So I think page is clear because I am writing a little bigger, and if it goes blur, you can visible you can visible the reaction. Okay. So अब देखो भाई next हमारे पास क्या है. So next part is addition removal of hydrogen. ठीक है. अब थर्ड पार्ट क्या बताया मैंने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो अगर मैं यहाँ पे बताऊं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अमोनिया NH3. इसमें ऐड करता हूँ भाई क्या हमारे पास ऑक्सीजन O2. तो अमोनिया से रिमूव क्या हो जाएगा. सो फ्रॉम अमोनिया देयर इज अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, वी गेट नाइट्रोजन प्लस वाटर. ओके. So we get nitrogen plus water. You have to balance. So from here we have loss of ammonia, loss of hydrogen. So this is called removal of hydrogen. Next is removal of any electropositive element. Removal of any electropositive element. So we take example like potassium iodide. When react with water, in presence of we can say O2, that is not O2, it is O3 basically. Okay, O3, that is ozone. What do we get? तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप इसको रियल में देखो तो there is a loss of electropositive element. Okay, so you can say we get potassium iodide. The electropositive atom potassium is lost from iodine. पोटेशियम आयोडाइड से यहाँ पे बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. आयोडीन सेपरेट बनेगा कि आयोडीन ने यहाँ पे क्या लॉस किया, पोटेशियम को लॉस किया. एट द सेम टाइम व्हाट वी गेट ऑक्सीजन. सो दिस इज बेसिकली O3. ये ओजोन है यहाँ पे. सो दिस इज द रिएक्शन दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन. यस सर, ये जो ओजोन की हम ओजोन की प्रेजेंस में कंडक्ट करा रहे हैं रिएक्शन, तो ये हम खुद एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट सर O3. वी आर प्रोवाइडिंग इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन. ठीक है, हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो ओजोन है यहाँ पे ना, इट इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड. ओके, वी विल लर्न लेटर कि व्हाई वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन. ओके, तो वो हमारे पास देखो यहाँ पे ओजोन क्या है, वो खुद किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो. ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड को कर रहा है यहाँ पे. तो ये एक एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है. ये आपका जी बताइए. यस, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू फ्रॉम दैट साइड. तो अब देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या है. दिस इज क्लासिकल. सर ऐसे मोस्टली सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिएक्शन में ही प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे हम अलग से प्रोवाइड करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसा क्यों, मतलब अलग से क्यों? उसमें भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है H2O में. नहीं देखो ना, H2 में जो है दैट कैन नॉट प्रोवाइड ऑक्सीडेबल ऑक्सीजन. ओके, तो वाटर कैन नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन. So certainly we use some agents which can produce nascent oxygen. So basically water cannot produce nascent oxygen. So what happened that जब ओजोन की बात करते हैं, O3 की बात करते हैं, तो O3 ब्रेक करता है और क्या देता है, O2 देता है, प्लस क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है. ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे बोला मैंने, मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो इज वेरी रिएक्टिव एंड दिस एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सो वाटर कैन नॉट डू दैट. वाटर कैन नॉट प्रोवाइड अस नेसेंट ऑक्सीजन इन एनी केस. तो ये जो ओजोन की प्रॉपर्टी है. ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो दिस इज क्लासिकल कंसेप्ट. अब क्लासिकल कंसेप्ट को मैं यहाँ पे बताता हूँ. नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉडर्न कंसेप्ट. तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है हमारे पास, देखो. According to modern concept, oxidation refer. If someone say what is oxidation, so oxidation हमारे पास यहाँ पे क्या भी, तो oxidation is also called de-electronation. Okay, so it is de-electronation. तो क्या होता है भाई de-electronation? कोई बताएगा? मतलब मीनिंग तो इसका आपको पता ही है, बट डी लगाया तो डी मतलब जब भी डी लगाते हैं तो मतलब रिमूवल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन.
दैट मीन्स सिंपल टू से कि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर कोई मेटल है, ठीक है, इसने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, एन पॉजिटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, एन नेगेटिव देगा। तो ये जो इतना मतलब इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ऐसे दिखा दो, या आप ऐसे दिखा सकते हो कि मेटल ने माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, एन इलेक्ट्रॉन, तो मेटल के पास क्या चार्ज का, एम एन पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए, सो दैट रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन भी बराबर करेंगे। ये बताएंगे इलेक्ट्रॉन बराबर कहाँ से, यहाँ से। जैसे देखो यहाँ पे वन नेगेटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज, एन नेगेटिव चार्ज, एन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एन नेगेटिव चार्ज, एन पॉजिटिव चार्ज, कैंसिल इच अदर। रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी आपने बैलेंस करने भी। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन either to show in first manner. But your writing is not visible, sir. Okay, not so visible. चलो मैं दोबारा लिखता हूँ इसको अगर विजिबल नहीं तो। नेक्स्ट इज आई एम राइटिंग अगेन कि मेटल हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्या दे रहा है, मेटल एन पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करो उतने पॉजिटिव देगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हमारे पास है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या देगा भाई, सोडियम गिव्स Na पॉजिटिव, एंड यू नो दैट सोडियम इज यूनिवैलेंट, तो एक इलेक्ट्रॉन पास करेगा। Sir, please move the page Likewise, little bit up. मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इट इज गिविंग मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम लॉस कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो इट इज हैविंग एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इसकी यहाँ पे +3, मतलब ये ट्राइवलेंट है, ये बाइवलेंट कटाइन है, और ये आपका मोनोवलेंट कटाइन है, ठीक है। तो आपको वैलेंसीज तो मालूम है, तो इस तरह दिखा सकते हैं। सो दिस इज द वन केस दैट इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोट की कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या इंक्रीज हो रहा है भाई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम पे 0 चार्ज था, यहाँ पे +2 हो गया। एल्यूमिनियम पे 0 चार्ज था, +3 हो गया। तो रिमेंबर कि जो एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन की पहचान ये भी है कि देर इज इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट दिस डजंट कवर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वी कैन से मॉडर्न कॉन्सेप्ट, बट वी कैन डिफाइन, हम बोल सकते हैं कि क्लास ऑफ इलेक्ट्रॉन में मतलब ये सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब रेस्ट बात करते हैं भी आगे, ठीक है। तो जो रेस्ट पार्ट इज दैट, अब तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो नेगेटिव चार्ज होगा भाई, तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास डिक्रीज होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास सल्फर है, ओके। सल्फर के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, ये रहा भाई 2 नेगेटिव चार्ज। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनेगा भाई, ये सल्फर बनेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, the 2 negative charge is decreased and the charge now become 0. So we can say oxidation is also called decrease of negative charge, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे कितने, 2। So this is what we called oxidation.
Sir, you're not audible. I may be audible. Okay. So look at the last slide. So I am not here to here. I'm not able to edit it. Okay. I'm not able to write here. So I will definitely download a software for that. But right now I have no software here. So what I'm saying that यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, पहले केस में आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, दूसरे केस में आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हो रहा है, तो मुझे बताओगे कौन सा है, कॉपर क्लोराइड में, कॉपर में है. So look at here, there is copper that is added to copper chloride. This is electropositive atom. Third is last mole of oxygen. So from copper oxide, what we lost oxygen, and what we get copper only. This is also reduction. Then removal of electronegative atom. तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे, जैसे आप फेरिक क्लोराइड को देखो, वहाँ पे 3 क्लोरीन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, और उसके बाद जब हम रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जाते हैं तो वहाँ पे वी गेट FeCl2. दैट मीन्स एक क्लोरीन यहाँ पे लॉस हुआ है. सो इनर्शियल वी कैन से ये एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज हो गया, रिडक्शन हो गई. और अगर लॉस हो जाए इसका कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का या फिर ऑक्सीजन का, दैट इज कॉल्ड आल्सो रिडक्शन. दिस इज क्लासिकल कंसेप्ट. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट की, तो वी कैन से इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के स्पेल थोड़े से मिस्टेक हुए और इज वन एक्स्ट्रा हियर. सो इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोनेशन. तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो जैसे मैंने पहले यहाँ पे लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, Mn पॉजिटिव में अगर हम n इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो व्हाट वी गेट मेटल. और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा भाई यहाँ पे अगर देखो रिएक्टेंट साइड पे पॉजिटिव चार्ज n पॉजिटिव था, वो डिक्रीज हो रहा है. सो देयर इज डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, अगर मैं सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो सल्फर 2 नेगेटिव हो जाता है, so that means there is increase of negative charge. So remember in electron transfer आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे गेन हो रहे. और इलेक्ट्रॉन लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होने से नेगेटिव चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने से पॉजिटिव चार्ज कम होता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी यू नो दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं. तो जब भी कोई, इफ अ सब्सटेंस डोनेट इलेक्ट्रॉन, मे बी 1 or 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड reductant. 1 point. If a substance reduces other, it is also called reductant. And if a substance itself undergo oxidation, it is also called reductant. And examples are the 2 basic examples which are very important: lithium aluminum hydride, जिसको LH कहते हैं, and the next one is sodium borohydride, जिसको हम NaBH4 कहते हैं. ठीक है. Oxidant is opposite of reductant. अगर reductant हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑक्सीडेंट एक्सेप्ट करता है. अगर रिडक्टेंट हमारे पास दूसरों को रिड्यूस करता है तो ऑक्सीडेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है. अगर रिडक्टेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है तो देन ऑक्सीडेंट अंडरगो रिडक्शन. सो एग्जांपल्स आर जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हियर K2Cr2O7. अगेन देयर इज अ मिस्टेक, K2Cr2O7, ठीक है, नॉट CrO7. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट. और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी एक लाइन लिखी मैंने कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है ऑक्सीडाइज एजेंट को, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है रिड्यूसिंग एजेंट को और रिड्यूसर्स को. इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि जो ऑक्सीडाइज एजेंट है दैट causes oxidation, and what the reducing agent does, it causes reduction. For example, here we have example of copper oxide and hydrogen that react to form copper and water. So basically copper convert कर रहा है, copper oxide जो है वो convert कर रहा है copper में. तो copper plus 2 state में है. Yes. हाँ जी बोलिए. The slide is not visible. Yeah. Slide is not visible. How it is possible?
Sir, it has turned black. Okay. Yes, sir. This is the issue that is facing here. ओके, बहुत ही गंदा इशू है इसका भी। चलो इसको रिजॉल्व करते हैं। Students, today I think we have to end the class. Okay, so next time we will again start the same topic. So please go through the notes today and note the points which are very important. Okay, the one part that is oxidation part is being understand to you, and reduction part is just a reverse. So I think we will start next